Hello students, today our topic is plasmolysis. In the earlier lecture we studied osmosis. Both the processes are somewhat related to each other. So what is plasmolysis? Plasmolysis is defined as the process of contraction or shrinkage of the protoplasm of the plant cell due to the loss of water. So what is plasmolysis? Plasmolysis is the contraction or shrinkage of protoplasm due to the loss of water. So if you have a cell and you place it in a hypertonic solution, that means the solution outside the cell is very concentrated. It is very concentrated. What will happen? Inside the cell we have solution, it is less concentrated, and outside the cell we have the solution which is hypertonic solution, which is more concentrated than that of the inside of the cell. So what will happen? The water will come out of the cell. Water will come out of the cell, and this will lead to the shrinkage of the protoplasm. The protoplasm will shrink. The protoplasm will shrink. Just in this case, the water, the cell has lost the water, which has led to the shrinkage of the protoplasm. This which has led to the detachment of the protoplasm from the cell wall, or shrinkage of the protoplasm from the cell wall, or contraction of the protoplasm from the cell wall. This condition is known as plasmolysis, and this plasmolysis, it is one of the rarest process in nature. If we see, you will hardly be able to see plasmolysis in plant cells in nature. We can induce plasmolysis by different processes, but naturally it is rare because plant cells maintain balance between the solution that's present outside the cells and that's present inside the cells. So it is the rarest process in nature, but still we can induce plasmolysis in plant cells by different methods. So what is plasmolysis? Plasmolysis में क्या होता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो shrink हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है सेल से वो बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है जिसमें सेल हो है फॉर एग्जांपल इस वक्त, तो उस एक्सटर्नल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। दिस विल लीड टू द लॉस ऑफ वाटर। इससे पानी जो है सेल से बाहर आएगा। दिस विल एंड अल्टीमेटली द प्रोटोप्लाज्म विल shrink or contract, and this condition is known as plasmolysis, or plasmolysis, it is the outcome of osmosis, in fact एक्सऑस्मोसिस। जब सेल से पानी बाहर आता है उसको हम एक्सऑस्मोसिस कहते हैं। सो इट्स अ रिजल्ट ऑफ एक्सऑस्मोसिस। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। What are the different stages of plasmolysis? ये जो plasmolysis है इसके different stages होते हैं। First stage is the incipient plasmolysis। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, this is the normal cell, this one is the normal cell. Now we have stages of plasmolysis. What are the different stages of plasmolysis? First is incipient plasmolysis. ये जो incipient plasmolysis है, it is the first stage of plasmolysis. In this stage, water starts flowing out of the cell. Initially, the cell shrinks in volume and cell wall becomes detachable. तो इसमें आपको ये पहले साइंस जो हैं plasmolysis के वो आपको इसमें नजर आएंगे। During incipient plasmolysis में ये जो cell wall है, it has started to shrink from the protoplasm। तो ये इससे shrink होना स्टार्ट हुआ है, मगर पूरी तरह से अभी shrink नहीं हुआ होता है। तो incipient plasmolysis में अभी plasmolysis जो है it becomes detectable, just detectable, और इसमें अभी स्टार्ट ही हुआ होता है कि जो आपका ये प्रोटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा shrink हुआ होता है, मामूली shrink हुआ होता है, एंड यू कैन ऑब्जर्व इट देन। मगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ
प्लाज्मोलिसिस अभी स्टार्ट ही हुई होती है प्लाज्मोलिसिस। और दूसरा स्टेज जो है वो एविडेंट प्लाज्मोलिसिस है। इसमें प्लाज्मोलिसिस जो है हुई होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है या प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिटेच हुआ होता है कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मगर अभी भी जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इट कवर्स दिस प्रोटोप्लाज्म जो अभी भी है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। डिटेच तो हुआ है हर जगह ऑलमोस्ट, किसी किसी जगह ये अभी भी अटैच हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म इट हैज नाउ डिटैच्ड फ्रॉम द सेल वॉल, डिटैच हुआ होता है सेल वॉल। लेकिन अभी भी जो ये प्रोटोप्लाज्म है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो इसको हम एविडेंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ओके, और जो ये इसका प्रोटोप्लाज्म की जो शेप होती है इस स्टेज पे, प्रोटोप्लाज्म की जो शेप होती है, इट एज्यूम्स द स्फेरिकल शेप। सो evident plasmolysis, the second stage of plasma. In this stage, the cell wall has reached its limit of contraction and cytoplasm gets detached from the cell wall, attaining spherical shape. तो इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। उसके बाद फाइनल प्लाज्मोलिसिस, लास्ट स्टेज, एंड स्टेज प्लाज्मोलिसिस, इसमें जो है साइटोप्लाज्म जो होता है इट बिकम्स श्रिंक, ये इट बिकम्स कंट्रैक्टेड, इतना कंट्रैक्ट हो जाता है दैट इट अपीयर्स assumes a circular shape and कहाँ जमा हो जाता है, सेंटर बीच में आ जाता है। और इस स्टेज पे पूरी तरह से जो प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है डिटेच हुआ होता है सेल वॉल से, काफी दूर जा चुका होता है सेल वॉल से, और सेंटर में एक सर्कल की तरह रह जाता है। इसमें आप वैक्यूल वगैरह वो भी कंट्रैक्ट हुए होते हैं। तो this is the end stage plasmolysis. It is the final plasmolysis. So we have three stages of plasmolysis. First is the incipient plasmolysis. It is the first stage of plasmolysis. In this stage, water starts flowing out of the cell. Initially, the cell shrinks in volume and cell wall becomes detectable. Second is evident plasmolysis. It is the second stage of plasmolysis. In this stage, the cell wall has reached its limit of contraction and cytoplasm gets detached from the cell wall, attaining the spherical shape. And third is the final plasmolysis. It is the third and final stage of plasmolysis. In this stage, the cytoplasm will be completely free from the cell wall and remains in the water in the center of the cell. Now one important point that we need to know here, अगर हमारे पास एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, तो नॉर्मली व्हेन यू हैव अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, आप प्लाज्मोलिसिस का कैसे होती हैं, व्हेन यू प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब आप एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो। नाउ इफ वी हमारे पास एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, इफ वी हैव अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और हमने उस सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है। नाउ द वाटर विल एंटर द सेल, वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक है, आउटसाइड जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हमने इसमें डाली थी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल इसमें हमने डाली थी, तो उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल में वाटर अंदर जाएगा एंड इट विल अगेन बिकम दिस टर्जिड लाइक दिस। नॉर्मल सेल की तरह ही अपनी शेप रिगेन कर सकती है इन सर्टन केसेस। तो ऐसी कंडीशन को हम डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इट इज अपोजिट ऑफ प्लाज्मोलिसिस, डी प्लाज्मोलिसिस। So when we place a cell in hypertonic solution, it loses water and it's known as plasmolysed cell. अगर यही plasmolysed cell हम hypotonic solution में डालते हैं तो water cell के अंदर जाएगा and this process is known as deplasmolysis, और cell अपनी shape और volume वगैरह फिर से regain कर सकती है। Now what are the examples of plasmolysis? So, and plasma is more common and happens in extreme case of water loss. तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में होती है, तो तभी प्लाज्मोलिसिस होती है। मगर रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप प्लाज्मोलिसिस के लेंगे, दे आर वेरी रेयर। मतलब अगर नॉर्मल प्लांट्स में आप प्लाज्मोलिसिस देखना चाहेंगे तो रियरली आप प्लाज्मोलिसिस देखेंगे। लेकिन अगर हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे
प्लाज्मोलिसिस की डिफरेंट एग्जांपल्स, तो बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल श्रिंकेज ऑफ वेजिटेबल्स इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब आप साल्ट सोल्यूशन में कोई वेजिटेबल डालते हैं, यू विल सी इट विल श्रिंक, इट इज़ बिकॉज वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सेल्स एंड वो जो सब्जी होती हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं। या अगर आप ब्लड डालते हो, ब्लड सेल्स डालते हो वाटर इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो ब्लड सेल्स दे श्रिंक एंड इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो वो भी एग्जांपल है किसकी, प्लाज्मोलिसिस। या अगर हम कभी कभी आप देखते हो वी स्प्रे वीडिसाइड्स ऑन द ग्रास, हाँ, यहाँ बागों में या लॉन्स में हम जब वीडिसाइड स्प्रे करते हैं, कुछ वीडिसाइड्स क्या है, वो प्लाज्मोलाइज करते हैं सेल्स को, उससे वाटर निकालते हैं बाहर, विच अल्टीमेटली किल द वीड्स। तो वो उससे उस वक्त भी क्या होता है, पानी लॉस हो जाता है सेल्स से। तो यहाँ हम सॉल्ट स्प्रे करते हैं, किसी लॉन पे अगर करोगे सॉल्ट, यू विल सी दैट द ग्रास विल बर्न, तो जैसे जल जाता है वो, जहाँ पे भी आप सॉल्ट स्प्रे करोगे, इट इज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। या अगर हम पिकल्स बनाते हैं विंटर्स में, तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हम साल्ट ऐड करते हैं। तो साल्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साल्ट, वो ये फंक्शन करता है कि वो अलाउ नहीं करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स, क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिम्स पे ग्रो करते हैं, दे अंडरगो एक्सोस्मोसिस, उनको प्लाज्मोलिसिस हो जाती है एंड दे गेट किल्ड। सो इट मेक्स द एनवायरनमेंट इनसाइड दोस पिकल्स, जेलीज, जैम्स एटसेट्रा लेस कंड्यूसिव फॉर द सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब भी हम पिकल्स बनाते हैं, जेलीज या जैम्स जो होते हैं, उनमें साल्ट ऐड किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस पर ग्रो ना हो। अगर ग्रो होते हैं तो वो किल हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोलिसिस। So these were the examples of plasmolysis. Thank you very much.